Hello students and welcome to geography class. I am your geography teacher Anand Pandey. Students, I hope all of you fine and safe at your home. Students, all of you also know that now in this new session we are not come to school due to the spread of coronavirus or COVID-19. So students, now we have decided to just study through the online class. Students, we have already sent videos of the previous chapters and the question answers in the PDF form, and I hope students all of you complete the work till chapter number 4. So students, now in this video session we are going to start the chapter number 5, industries. Students, in the previous turn I have not able to send the video due to some technical problem. Now we have corrected. Now we are going to start this new chapter, industries. Now students, all of you have the book, and now just start the reading of this chapter and understand the things that are given through this explanation video. Now students, you see in the book industries. Now in the industries we are going to understand the different types of industries that work around us. So now first we are going to understand the meaning of industry. The word industry refers to all activities, organization involved in processing of the raw material into finished products. Industrial activities involve the use of tools and machines to produce large quantities of goods in workshop and factories. It converts the materials of low economic value like iron ore into the products of high economic value like steel, sheets and cables. Okay students, now we are going to understand the meaning of industry. जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा और हम लोगों को एक बात समझ में आई कि एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जो वर्कशॉप की बात कर रहे हैं या फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे किसी भी चीज को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है और बहुत बड़े स्केल पे ये काम किया जा रहा है और लोगों तक आसानी से इसको पहुंचाया जा रहा है. जैसे हम लोगों ने देखा एक लो वैल्यू की चीज जैसे आयरन ओर जब निकलता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री तक पहुंचा और रिफाइन किया गया, उसे स्टील में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया. क्योंकि जो फैक्ट्री का काम होता है बेटा, वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना होता है. तो दिस वर्ड इज टेल अस अबाउट द इंडस्ट्री. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, an industry is usually named after the main products. For example, the textile industry, especially in making of cloth. The auto industries, specialists in making a car. Industries are the part of secondary sector. Okay, now the next part of this paragraph, especially जैसे इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है, just we are going to focus on the name of the factory, of the industry. जब हम लोग नेम की बात करते हैं किसी फैक्ट्री की, किसी इंडस्ट्री के, तो उसका उस इंडस्ट्री और फैक्ट्री का जो नेम होता है बेटा, वो उसके वर्क पे डिपेंड करता है. जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जहां पे ऑटो का काम होता है, जहां पे मोटर कार बनाई जा रही है, बाइक बनाई जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इंडस्ट्री. उसी की तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, इफ वी आर गोइंग टू टेक द अनदर एग्जांपल वेयर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लॉथ्स, तो नाउ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इस तरीके की इंडस्ट्रीज को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं. फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा बुक में एक सेकेंडरी सेक्टर लिखा हुआ है. तो जैसे अगर जब इफ यू आर ऑन द इकोनॉमिक्स, तो नाउ वी हैव द 3 सेक्टर्स, द प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड द टेरिशियरी सेक्टर. Actually, the primary sector belongs to the raw material, means the agricultural type of product. जैसे जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल से बिलोंग करता है, और जब ये रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में चला जाता है और ये फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने के लिए जाता है, तो इसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर, importance of industries. Most human beings are developed on industries for the fulfillment of their basic needs. Industrial development is also the great importance to the countries
and seen as a measure their economic strength. Industries are thus the important to us in many ways. Economic progress, the strength of a country is closely linked to the industrial development. Some of the strongest and most powerful nations in the world are those that the industrially advanced. Core industries like the iron and steel help make the economy of a country strong. Now steel is needed to make the bridges, buildings, cars and machines. Okay. अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को समझना है बेटा, वो समझना इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इन इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे अगर बच्चों हम लोग थोड़ा सा भी देखें तो नाउ प्रेजेंट टाइम और नाउ अ डेज वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ओके, फॉर आवर लाइवलीहुड. हम अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं. जैसे व्हेन वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी यूज द टूथपेस्ट. हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सोप का इस्तेमाल करते हैं. उसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम लोग दिन भर इस्तेमाल करते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें कहां बन के आ रही हैं. ये सारी चीजें तो इंडस्ट्री में बन के आ रही ना. अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती. ये क्लॉथ है, द क्लॉथ दैट वी आर वियरिंग, तो दीज क्लॉथ्स आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज. ये भी इंडस्ट्रीज में बन के आ रहे हैं. तो इसलिए अब अगला, ये तो एक हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट की बात हो गई कि किस तरीके से एक इंडस्ट्रीज हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है. हाउ द इंडस्ट्रीज fulfill our basic requirements that required to live our life. Then on the other hand, अगर हम लोग दूसरे तरफ जाकर देखें तो क्या देखते हैं, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है बेटा, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रीज. जो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा वहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, जितने ज्यादा वहां पे वर्कर काम करेंगे, जितना ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा वो कंट्री की प्रोग्रेस होगी. फिर अगर हम लोग कोर इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो आजकल आप लोग देखते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द मोस्ट डिमांडिंग आइटम इज द आयरन एंड स्टील, बिकॉज आयरन एंड स्टील्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. जो आयरन और स्टील है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिजेस देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहां पे आयरन और स्टील का इस्तेमाल हो रहा है. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये इंडस्ट्रीज किसी कंट्री में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो वहां के लोगों को बहुत ही तरक्की करने का मौका मिलता है. वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, दे हैव द एम्प्लॉयमेंट थ्रू द इंडस्ट्रीज. वहां के लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं. वहां की कंट्री की इकोनॉमी धीरे 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 ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देती है. तो नाउ दीज टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल थिंग्स दैट वी टेक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Large scale production of good, if done right, results in a large scale returns. Development of industries thus creates the environment for a local as well the nation's economy flourish. Now, the satisfaction of human wants. By producing a variety of goods, industries help satisfy a wide range of human wants. Industries also help bring innovative new products to the market. Employment, income, the optimum resource utilization. Okay, now अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी में, वो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया कि जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, जहां पे इंडस्ट्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी. तो ये सारी चीजें होंगी. फिर उसके बाद से आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. अब सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या है बेटा, हर आदमी की अपनी अपनी डिमांड है. ये डिमांड कहां से पूरी हो रही है, हम तरह तरह के वी आर वेयरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स लाइक द बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, टॉफी, मैगी, pasta, different types of things we are using in our food. Okay, so from where we get these things? So we are getting these types of food items and other items from the industries that are manufacturing for us. तो इस तरीके से ये हमारे सेटिस्फैक्शन को भी मिलता है कि ये इन चीजों को हमें मिल रही है.
फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी बेटा, लोगों को नौकरियां उतनी ज्यादा मिलेंगी, उतने ही ज्यादा वो अर्निंग करेंगे। ओके, अब उसके बाद है ऑप्टिमम। अब जैसे मान लो अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं होती तो कुछ ऐसे चीजें होती जिनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। अब जैसे आयरन, अगर आयरन, ये इंडस्ट्रीज नहीं होती तो आयरन को रिफाइन नहीं करती, तो आयरन इज अ रिसोर्स, आयरन एक रिसोर्स है हमारे लिए। तो इसी तरीके से समझ लेना है बेटा कि इन रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए किस चीज का जरूरी था, इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज ने इन रिसोर्सेस को भी डेवलप कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में बेटा हमें क्या कवर करना है, देखो, इंडस्ट्रीज आर ऑलमोस्ट वेरिड एज द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस द बेस्ड on the permanent being used. Industries can be classified in different ways on the basis of scale. Cottage industry, small scale industry, large industries. Okay, तो अभी हम लोग बेटा इस चैप्टर में 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरा पढ़ेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री और तीसरा पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैं अभी एक आपको छोटा सा इसके बारे में रेफरेंस दे रहा हूं, फिर उसके बाद से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो हमारा है कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु गृह उद्योग। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब छोटे लेवल पे काम करती हैं, जैसे घर पे काम करती हैं, फैमिली मेंबर्स ही आपस में मिलके और उसको क्या करते हैं, उस किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में मोमबत्ती बनाने का काम हो रहा है, अगरबत्ती बनाने का काम हो रहा है, मसाले बनाने का काम हो रहा है, या कुछ फैमिलीज आपस में मिलके पापड़ बना लेती हैं, उसको मार्केट में सेल कर देती हैं। तो जब इस तरीके का काम होता है तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इज नोन एज द कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु गृह उद्योग। ओके, अब उसके बाद से नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री का या मशीन्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे जब ये काम होता है तो इसे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेटा ये बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इस पे हैवी कैपिटल लगता है। कैपिटल मींस बहुत ज्यादा पैसे का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, मजदूर लगते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हैवी मशीन्स लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं, तब जाके इस इंडस्ट्रीज को हम लोग रन करा पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो सेशन ओनली वी हैव कंप्लीट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, importance of industries and the types of industries. Now in the next video session we are going to complete the basis of the raw material. Okay, thank you.